Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about security level in Tally Prime. So now, before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. Before starting the topic, we'll just welcome our speakers. So the speakers are here. The presentation will be conducted by Tejashri. So Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Miss Aarti. So Aarti, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Tejashri and Aarti to move ahead with your presentation. Okay, ma'am. Can you please share my screen? Share the PPT. Yeah. Hello everyone, myself Tejashri. I am representing a webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to discuss about the security levels in Tally Prime. Next slide, please. Here is the Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So today we start from the backup and restore data. It is good practice to take a regular backup of your data to avoid any data loss. Using Tally Prime, you can easily take a backup of your company data and store it in a secure location such as hard drive, a cloud storage site, and so on. Now, if you lose your data due to any unfortunate reason, you can restore your backup data. So जैसे कि Tally Prime में आपको रेगुलर बैकअप लेना है Tally में, जिससे आपका कोई भी डेटा लॉस होने के चांसेस कम हो सके. Tally Prime यूज करके आप आपके कंपनी का डेटा स्टोर कर सकते हो एनी लोकेशन में, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया. यहाँ पे आप आपके स्टोरेज में डेटा स्टोर करके रख सकते हो बैकअप फॉर्म में, और जब भी अगर कोई अनफॉर्चुनेट रीजन से आपका डेटा लॉस होता है तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. Multiple security control. All the company information and the business transaction that you maintain in a Tally Prime are safe. However, you can provide additional security by adding a username and password. Only Tally users with this credential can access your business information. Moreover, you can create users in Tally Prime with different level of access. And user management in Tally Prime is a simple and convenient way to secure your company data and yet to keep it up to date with appropriate business transactions. तो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो भी आप टैली प्राइम में मेंटेन करते हो वो सारे सेफ है. आप आपके टैली प्राइम को एक एडिशनल सिक्योरिटी दे सकते हो बाय एडिंग आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड, जिससे आपके ओनली टैली के यूजर्स ये क्रेडेंशियल एक्सेस कर सकते हो और बिजनेस का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. आप आपके टैली में यूजर्स डिफरेंट लेवल पे बना सकते हो, जिससे आपके यूजर्स को डिफरेंट लेवल पे सिक्योरिटी मिलेगी और आपके यूजर्स मैनेज हो जाएंगे टैली प्राइम को यूज करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. यूजर मैनेजमेंट. By default, two user security levels are available in Tally Prime. First is owner and second is data entry operator. The owner can access all the data and set up security, create and update the user information, and so on, while the data entry operator can record the vouchers, view as the owner. You can also add more users, modify existing user credential,
remove users and alter the permission for the different user in your company. So basically आप टैली में दो सिक्योरिटी लेवल्स आपको अवेलेबल है, एक है ओनर का और दूसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर का. ओनर के पास में सारे राइट्स रहते हैं जो डेटा को एक्सेस करता है विद सिक्योरिटी, जो जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो और यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हो. दूसरे साइड में डेटा एंट्री ऑपरेटर ओनली आपके वाउचर्स को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट्स देख सकता है. सो अगर ओनर चाहे तो और भी यूजर्स ऐड कर सकता है या फिर उसकी जो क्रेडेंशियल्स है वो भी मॉडिफाई कर सकता है, और यूजर्स को अगर नहीं चाहिए तो वो भी निकाल सकता है, और साथ ही साथ उसको अल्टर करने की परमिशन भी यूजर्स को रहती है. नेक्स्ट स्लाइड. यूजर रोल्स, security levels and set up user rights. If you want to track which user has added, altered or deleted a transaction or want certain users in Tally Prime to have full permission to access the data, you will have to create a username and password for all these users and assign the rights accordingly. तो अगर आपको टैली में कौन से यूजर्स ने क्या अल्टर किया है, क्या डिलीट किया है, ये अगर देखना है तो आप टैली में यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट यूजर के, और उसके साथ साथ उनको उस हिसाब से राइट्स दे सकते हो जिससे वो टैली में वर्किंग कर सके. नेक्स्ट स्लाइड. टैली वोल्ट. टैली वोल्ट इज एन एनहांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम दैट अलाउज encryption of your company data based on your business environment. If you want to maintain the privacy of the company that you have entered in Tally Prime, use Tally Vault. Providing a Tally Vault password encrypt your data and all the transaction details, including the company name. Next time you open your company, you will need to first enter the password to view the company name and other details. Tally Vault एक ऐसा पासवर्ड है जो कंपनी को अलाउ करता है इनक्रिप्ट करने में. जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको आपकी कंपनी की प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, तो टैली प्राइम में आपको टैली वोल्ट का ऑप्शन है जिससे आप आपकी कंपनी की प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो. टैली वोल्ट का पासवर्ड देने के बाद आपकी कंपनी का नाम और ट्रांजैक्शंस दोनों भी प्राइवेट रहेंगे. नेक्स्ट टाइम जब आप आपकी कंपनी ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले टैली वोल्ट का पासवर्ड एंटर करना है, और देन आपकी कंपनी का नाम दिखेगा और देन आप आपकी कंपनी को ओपन कर सकते हो. So next slide is Tally audit. So audit is an important function of any business organization. It denotes that the business has true and fair transactions during the year. Tally Prime has an inbuilt feature, Tally audit, which enables the auditor to perform an audit or track changes that affect the integrity of transaction, such as changes made to date, ledgers, masters and amounts in the vouchers are reflected in the Tally audit listing. जैसे कि हमें पता है ऑडिट एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो टैली में आपको बाय डिफॉल्ट एक टैली ऑडिट का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि डेट वाइज भी, मास्टर वाइज और अमाउंट वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको टैली ऑडिट के लिस्टिंग में दिखेगा. So that's it from my side. Thank you everyone. I would like to proceed ahead. Thank you so much. Thank you, Tejasri. It was a nice presentation. I am sharing my screen. My screen is visible? Yeah, it's visible. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Myself, Aarti Narode. I am here to represent the live demo session on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी लेवल इन टैली प्राइम. तो हम सबसे पहले देखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर. हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए हमें बैकअप लेना सबसे जरूरी है. तो हमें टैली प्राइम में एक बहुत इजी ऑप्शन है बैकअप लेने का. तो सबसे पहले हमें डाटा में जाना है, उसकी शॉर्टकट की है Alt+Y. यहाँ पे हम बैकअप लेंगे.
यहाँ पे हमें जो ड्राइव में हमें बैकअप लेना है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली पाथ भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से डायरेक्टली ड्राइव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जो ड्राइव में हमें बैकअप लेना है वो ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट हमें जो नाम देना है, बैकअप रखना है वहाँ पे, वो फोल्डर को जो नाम देना है वो हम यहाँ पे लेंगे। डायरेक्टली जो दिन का बैकअप ले रहे हैं वो दिन का डेट डाला तो भी चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ आज की डेट, और यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिक फाइल पाथ, तो यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे पाथ सेट करना है। अभी हमें कौन सा कंपनी का बैकअप लेना है, एपी इंटरप्राइजेस, जो कि हमारी कंपनी है। तो यहाँ पे मैं इंटर कंपनी सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमारा बैकअप हो गया। अभी हम बैकअप देखते हैं। यहाँ पे ड्राइव में जाके डी ड्राइव में हमारा बैकअप है, ये देखिए आज की डेट का, यहाँ पे हमारा बैकअप हो गया। अभी ये बैकअप हमें टैली में रिस्टोर करना है। कभी अगर हमारे कंपनी को अगर डाटा मिसमैच हो गया, नहीं तो कंपनी डिलीट हो गई, तो हमारे पास बैकअप रहता है। तो वो बैकअप हम कैसे रिस्टोर करेंगे, तो हमें सबसे पहले डाटा में जाना है और यहाँ पे ही रिस्टोर का ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे हमें फोल्डर का पाथ सेलेक्ट करना है, जहाँ पे हमारा बैकअप है वो पाथ हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो हमने फोल्डर में जाके डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा। हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफिक पाथ में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पाथ हमने सेट कर लिया। यहाँ पे भी हमें वही पाथ सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके डी ड्राइव में आज की डेट का हमारा यहाँ पे फोल्डर है, उसमें हमारी कंपनी है, तो वो मैं यहाँ पे रिस्टोर करूंगी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है और यहाँ पे हमें सेट करना है। अभी हमारा यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल एंड यूजर मैनेजमेंट। तो इसमें हमें यूजर वाइज सिक्योरिटी कंट्रोल देना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेशन करना पड़ेगा। तो हम F11 में जाएंगे फीचर्स में और हमें ये वाला ऑप्शन इनेबल tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना है। अभी हमने एक्टिवेशन किया। अभी हमें हमारी कंपनी को पासवर्ड देना है। हमें कंपनी में जाके कंपनी अल्टर करनी है। अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, यहाँ पे हमें यस करना है और यहाँ पे यूजर नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ए देती हूँ और यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है। मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और यहाँ पे हमें कंपनी सेव कर देनी है। अभी हमारी कंपनी, जब भी हम कंपनी ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे कंपनी ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछेगा। अभी हमारा कंपनी लेवल पे पासवर्ड हो गया। अभी हमें यूजर क्रिएट करना है, तो हमें कंपनी में जाके यहाँ पे यूजर रोल में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 यूजर दिए, टैली डाटा एंट्री, tally.net यूजर, tally.net ऑडिटर और tally.net ओनर। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी 4 यूजर दिए, तो हम यहाँ पे डाटा एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया है कि डाटा एंट्री को हमें क्या क्या डिसअलो करना है और क्या अलो करना है। अगर हम यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया है। अभी हम यहाँ पे एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे रोहित नाम का क्रिएट करती हूँ। अभी हमें इसे राइट्स देने कि इसे क्या डिसअलो होना चाहिए, क्या अलो होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है। सबसे पहले हमें ये सेव करना पड़ेगा। हमने रोहित नाम का क्रिएट किया यूजर रोल हमने सेव कर दिया। अभी हमें उसे राइट्स देने हैं, तो यूजर रोल में आएंगे, यहाँ पे रोहित और यहाँ पे ओनर की जगह पे हमें यहाँ पे रोहित लेना है और हमें इसे डिसअलो क्या करेंगे और अलो क्या करेंगे। इसे राइट कौन से देने, इसे रोहित को डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ बैलेंस शीट, और यहाँ पे रोहित को डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। मैं और एक देती हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए डेबुक, यहाँ पे मैंने डेबुक ले लिया। एंड ऑफ लिस्ट करके अलो क्या करना है, रोहित को क्या क्या राइट्स देने हैं, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे रोहित को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे स्टॉक समरी, और यहाँ पे इसे एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे राइट्स दे दिए, यूजर क्रिएट करके यूजर को राइट्स दे दिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पासवर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट। या इसमें क्या होता है, हमने अभी जो यूजर क्रिएट किया है उसे हमें पासवर्ड देना है और यूजर नेम भी क्रिएट करना है। जब भी हम कंपनी ओपन करेंगे तो यूजर को हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है, जो कि वो डाल के वो ओपन कर सके, जो उनको ओनर के राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो उसके लिए हमें कंपनी में जाना है, यूजर एंड पासवर्ड में जाना है, और यहाँ पे हमने कौन सा यूजर क्रिएट किया है, रोहित। तो रोहित को हमें यूजर नेम देना है, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ रोहित यूजर नेम मैंने क्रिएट किया और उसे पासवर्ड देती हूँ 1 2 3, और इसे हम सेव कर देंगे। अभी मैं कंपनी सेट कर दी हूँ और हम यूजर वाइज कंपनी ओपन करके देखेंगे रोहित नाम से। मैंने कंपनी अभी यहाँ पे बंद कर दी, तो मैं यहाँ पे कंपनी जब भी ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो अभी मैंने यूजर वाइज क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम यूजर का पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया रोहित और पासवर्ड डाल दिया। अभी ये कंपनी ओपन हो गई। अभी देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है और डे बुक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे राइट्स दिए नहीं है। तो यहाँ पे हम गो टू में जाके देखेंगे, गो टू में यहाँ पे सर्च करते हैं बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे एक्सेस नहीं है। बैलेंस शीट हमने ओपन किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो एक्सेस अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, उसे डिसअलो नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। हमने यहाँ पे रोहित को प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सेस दिया था, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डाल के देखेंगे, सर्च करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे राइट्स दिया था। नेक्स्ट है हमारा टैली वॉल्ट। तो पहले मैं कंपनी मेन यूजर से ओपन करती हूँ। यहाँ पे मेन यूजर से हमने पासवर्ड दिया था AA, तो मैंने यहाँ पे मेन यूजर से ओपन किया। टैली वॉल्ट में क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो कंपनी का हमारा नाम हाइड हो जाता है, नाम कभी भी शो नहीं होता है टैली वॉल्ट का हमने पासवर्ड दिया तो, और डबल सिक्योरिटी रहती है। जैसे कि देखिए हमें टैली वॉल्ट का पासवर्ड देना है, तो कंपनी में जाके यहाँ पे टैली वॉल्ट पे जाना है और यहाँ पे हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है कि जो कंपनी को हमें पासवर्ड देना है टैली वॉल्ट का, वो कंपनी यहाँ पे सबसे पहले ओपन रखनी है, फिर बाद में वो सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे पासवर्ड जो देना है वो पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे भी यस करना है। अभी हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो गई, तो हम देखते हैं, ये देखिए ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। हम यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें टैली वॉल्ट का पासवर्ड डालना है और यहाँ पे मेन यूजर का अपनी कंपनी का नाम शो हो रहा है। अभी हमें कंपनी का पासवर्ड डालना है जो हमने क्रिएट किया था, मेन यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। ये देखिए अभी हमारी कंपनी ओपन हो गई। जब भी हम कंपनी देखेंगे ना, तो हमारे कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, नाम शो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार में दिख रहा है और इसमें आपका डेटा भी सिक्योर रहता है। अभी यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी लेवल हो गया। थैंक यू। Thank you, Tejashree and Aarti, for your presentation. So now it's a time for the overview of today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Hi, good evening everyone. Myself is Bhagwati. So today's session is a very important session for any of the organization. आज हम जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेसेस कर रहे हैं, whatever we are doing in a day-to-day basis, so वो हमारा टोटल कैप्चर हो रहा है। If we are using Tally, so वहाँ पर हमारा पूरा डेटा कैप्चर हो रहा है। We are completely dependent on our data and on the Tally. So Tally तो it's okay. Tally तो एक बार इंस्टॉल हो गया फिर डिलीट भी हो गया, that's okay. You can install again and again. That's not any concern. But in terms of the data, it's a very, very, very important of the organizations. So in this case, हम अपने डेटा को वेरियस टाइप ऑफ तरीके से हम कैसे हैंडल करेंगे, मिस हैंडलिंग से कैसे बचाएंगे और डेटा सिक्योर कैसे रखेंगे, जिस पर आज हमने ये टॉपिक लिया था। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया कि पूरा का पूरा डेटा को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं और मिस हैंडलिंग से कैसे बचा सकते हैं, सेफ साइड कैसे बैकअप रख सकते हैं।
तो आप अपने डेटा का, टैली में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपने डेटा का बैकअप किसी भी ड्राइव पे किसी भी लोकेशन में, फॉर एग्जांपल आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हो, मल्टीपल पीसी से यूज कर रहे हो, एक पीसी मल्टीपल, इस पीसी से मल्टीपल लोकेशन में आपको अगर डेटा बैकअप करना है तो यू कैन डू मैनुअली थ्रू आउट द सर्च विद द पर्टिकुलर लोकेशन एंड डायरेक्टली बैकअप आप मान कर सकते हैं। आप फोल्डर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, और आपको जब चाहिए यू कैन रिस्टोर योर दैट पर्टिकुलर डेटा एनी ऑफ द लोकेशन जहां पर भी आप टैली चला। फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस, आपने यहाँ से बैकअप लिया, दूसरे ब्रांच में गए, डेटा बैकअप लेकर के चले गए, पेन ड्राइव व्हाटएवर और थ्रू द मेल्स, एंड वहां जाकर के आपने रिस्टोर कर दिया। तो यू कैन एंजॉय योर वर्क एनी लोकेशन, यानी मल्टीपल लोकेशन विथ योर डेटा। दिस इज कंप्लीटली मूवेबल। नंबर 2 हम बात करेंगे डेटा इज ओके। यहाँ पूरा का पूरा डेटा तो हम कहीं से कहीं भी मूव कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द डेटा मिस हैंडलिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पर्सन है जो एकदम नया है, आपके लिए नया है, आपकी टैली के लिए नया है, आपके सिस्टम में नया है, डेफिनेटली यू कांट गिव अप कंप्लीटली एक्सेस। सो डेफिनेटली आप उसको जो केआरए आपने दिया है, फॉर एग्जांपल वो एंट्री लेवल का बंदा, उसको सिर्फ सेल्स इनवॉइस बनाने हैं। सो आप यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से हायरार्की डिजाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन लेवल, मैनेजर लेवल, सीएफओ लेवल्स, व्हाटएवर जो भी लेवल्स आपके होंगे, और ऑपरेटर लेवल। ऑपरेटर में भी कुछ लोग बीआरएस वगैरह कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां से बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए अलग से लोग रखे हैं, सेल्स और रिसीट के लिए अलग लोग रखे हैं, परचेज के लिए अलग टीम है। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन मैनेज ऑल दी थिंग्स, की परचेज मैनेजर, स्टोर मैनेजर कैन एक्सेस द डेटा, कि उसको स्टोर का पूरा डेटा दिखाई देगा, वो एंट्री वगैरह नहीं कर सकता। परचेज मैनेजर कैन एक्सेस ओनली परचेज डेटा। Same way, sales vouchers जो भी salesman can do the entry and transactions, and जो sales वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं, they can access that data only कि वो उसके पास स्टॉक कितना है। तो in that all the scenario you can generate the complete role, and according that role you can define, you can assign the particular permissions, so ताकि वो लोग उस रोल के हिसाब से उसको उतने ही डेटा एक्सेस किया जा सके। This is again a very beautiful feature. Even you can give the access like they can display only, or you want to give the access with the display with the print, so they can do the print also. If you want to give the access, modify कर सकता है, so they can do the modification. If you want to give the access कि modify नहीं कर सकता, सिर्फ entry कर सकता है, yes, is also possible. So various type of the parameters, whatever combination you want, you can design your own, and you can implement in your tally, and you can enjoy your business without any tension or hassle free. This is the idea of the security levels. And again, अब आपको manual data backup नहीं लेना है, तो we have a utility that is an additional utility add-on is there. We are developing that for your requirements, according your requirements, कि एक शेड्यूलर लगा हुआ है, जब भी आपका डेटा आप जब चाहिए सिस्टम ऑटोमेटिक बैकअप लेवे, या आप जब टैली स्टार्ट करें बैकअप हो जाए, या टैली आप बंद करें तो बैकअप हो जाए, उसके सर्टन फोल्डर में बैकअप होना चाहिए, डेट एंड टाइम वाइज होना चाहिए, डेज वाइज होना चाहिए, डे वाइज होना चाहिए, whatever combination you want to generate, this is also possible through the customization. We already developed this utility. You can connect with us and you can check the demo. So in all the terms of the security level, if you have any doubt and questions, you can connect with your account manager जो आपके राजलक्ष्मी में आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नंबर हमारे चैट जूम चैट में है, आप वहां पे आप फोन कर सकते हैं। यू कैन गेट द एडवांटेज एंड यू कैन टेक द सपोर्ट फॉर द ऑल द इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर सेशंस जो आपके यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, ये सेशन आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। तो आप कभी भी इस चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसकी लिंक ऑलरेडी जूम मीटिंग में है, जूम चैट में है। अभी आप इमीडिएट सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर द जूम चैट you can't access that particular that links, so you can do this, and वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो भी हमने सेशन आज तक किए हैं। और you can also take the advantage how to use the tally in the every modules, whatever modules is available in the tally, that all are covered in this particular YouTube channel. So this is the overall idea of the hours from my side, and now Anja is up to you. Thank you so much, sir.
So if you have any more questions or you require any more information, you can just connect to your key account manager. And soon this session will be uploaded to our YouTube channel. So be connected to our social media. So thank you everyone for joining today's session. So now we'll wind up the session. Thank you everyone.